Hello, dear students. Today our topic is vibrations of polyatomic molecules. Polyatomic molecules means the molecules which possess more than two atoms. Right? So those are called polyatomic molecules. For example, carbon dioxide. So CO2 means three atoms, fine. So it's a polyatomic molecule. So we will see this today's lecture is a formula based lecture. So we will calculate these all types of vibrations of polyatomic molecules for both linear as well as non-linear molecules, fine. So these vibrations in case of polyatomic molecules is the following types. We have fundamental vibrations, we have stretching vibrations, and we have bending vibrations. These fundamental vibrations, what are these types of vibrations? We can say, let me clear this type of fundamental vibration. Let me clear this, the definition of fundamental vibration. So at room temperature, we can say at room temperature, most of the molecules are in the ground vibration state. ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, ऑब्वियस सी बात है. रूम टेम्परेचर पर सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है ना, दैट विल बी इन द ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट. दैट्स at V is equal to 0. Vibrational quantum number V is equal to 0. At room temperature, most of the molecules are in this vibrational state. Fine. So that only transition of interest is that which takes place from V is equal to 0 to V is equal to 1. Suppose this is V0. Fine. Yeah, V is equal to 0 and this is V is equal to 1. So when all the molecules at room temperature are in the ground vibrational state, so only that so that only transition of interest is that which takes place from V is equal to 0 to V is equal to 1. Fine. So the vibration frequency, याद रखना, the vibration frequency corresponding to this transition is called fundamental vibration frequency. जो vibration ये transition correspond करेगा, possess करेगा, उस vibration को हम क्या कहेंगे? Fundamental vibrational frequency. So this is called a fundamental vibrational frequency. I will repeat once again. At room temperature, most of the molecules are in the ground vibration state, so that the only transition of interest is that which takes place from V is equal to 0 to V is equal to 1. The vibration corresponding to this transition is called fundamental vibration frequency. फाइन. तो ये फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दैट्स फॉर बोथ लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर मोल, बिकॉज polyatomic molecules it can be linear as well as non-linear. And make sure this fundamental vibrations, these are of two types. We have stretching, we have bending vibrations. molecule जब stretch करेगा तब उसके पास जो vibration होगी उसको बोलते हैं stretching vibration. molecule जब bend करेगा during vibration, यानी vibration के समय या bending के समय जो vibrations molecule को होगा तो हम बताएंगे it's a stretching vibrations and molecule stretches, bending vibration when the molecule bends. Fine. Fine. So I'll write over here. So this हमें ये सारे कैलकुलेट करने हैं. तो यहाँ पर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है ना, इट कैन बी नॉन लीनियर एज वेल एज लीनियर. ठीक है, ये नॉन लीनियर भी है और क्या है, लीनियर भी है. फाइन. तो पहले हम देखेंगे टोटल फंडामेंटल वाइब्रेशंस. आपको बस फॉर्मूला याद रखना है. टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस इन केस ऑफ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3n-6. Fine. So likewise for linear polyatomic molecules the total number of fundamental vibrations or frequency किसके बराबर है? 3n-5. याद रखना, where n is the total number of atoms. Total number of atoms. Fine. Total number of atoms. फिर हम इसको अप्लाई करेंगे विद एग्जाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल आप काम करेंगे, आप पहले इसको रिमेंबर करेंगे. ठीक है ना? So we can say therefore there are 3n-6 fundamental vibrations in case of non-linear molecules. So we can say if the molecule is what non-linear,
there is rotation. We can say like this. Therefore, there are 3n minus 6 normal modes of vibration for nonlinear molecules and 3n minus 5 normal modes of vibration for लीनियर मॉलिक्यूल्स. ये किसके लिए है? नॉन लीनियर. ये किसके लिए? नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है ना. तो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस, अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? A normal mode of vibration is defined as a molecular motion in which all the atoms in a molecule vibrate with same frequency. ठीक है ना. सारे के सारे एटम्स वाइब्रेट करते हैं विथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड all the atoms in the molecule vibrate with same atoms and pass through their equilibrium position simultaneously. और equilibrium position, ठीक है, और mean position को पास करता है simultaneously all the atoms. ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखना. एंड आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे कि स्टार्टिंग लेक्चर में जब आपने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, आप ऐसे भी बोल सकते हो अ नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन शुड इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है, डायपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए, जो कि कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है, प्रीरिक्विजिट है. किसके लिए? वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के लिए और वाइब्रेशन के लिए और IR वाइब्रेशन के लिए या IR स्पेक्ट्रा के लिए. फाइन. सो वी कैन से d mu, what's mu? Mu is the dipole moment. d mu divided by dr should not be equal to 0. म्यू क्या है? म्यू डायपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए. ठीक है, डायपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए. तो चेंज इन डायपोल मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो दीज आर कॉल्ड IR एक्टिव वाइब्रेशंस. ये क्या है? IR एक्टिव. ये आपको पता है. ठीक है, तो मैंने स्लाइड बिट चेंज किया उस रिक्वायरमेंट को जो आपने स्टार्टिंग में बताया था. आपने कहा तो डायपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए फॉर एनी वाइब्रेशन और फॉर एनी मॉलिक्यूल टू बी IR एक्टिव और टू शो वाइब्रेशन मोशन. तो मैंने यहाँ बताया जो चेंज इन डायपोल मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है ना, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी वो चेंज होने चाहिए. ठीक है ना. तो दैट मीन्स इट्स IR एक्टिव वाइब्रेशन और IR एक्टिव मॉलिक्यूल. फाइन. सो अब आपको टोटल आपने देखा, तो हम देखेंगे जो इनमें से टोटल में बेंडिंग कितने हैं और स्ट्रेचिंग कितने हैं. ठीक है, तो स्ट्रेचिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन है ना फॉर लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ये दोनों को सेम है. ठीक है, दैट्स n-1. यहाँ पर भी आपको क्या है? n-1. n इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, ये मैंने यहाँ से क्या बताया? ये था फंडामेंटल. ये क्या था? फंडामेंटल. मैं यहाँ पर लिखूँगी फंडामेंटल वाइब्रेशन. ये क्या है? फंडामेंटल में से स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस. ठीक है, और बेंडिंग देखते हैं जो रिमेनिंग अब होगा. ठीक है, प्रैक्टिकली निकालना हो तो फार्मूला देंगे. ठीक है, अगर आपको कुछ निकले तो हम डायरेक्टली फंडामेंटल से माइनस करेंगे स्ट्रेचिंग, तो मिल गया आपका बेंडिंग. ठीक है, तो बेंडिंग के लिए भी फार्मूला अलग से है. सो फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इट्स 2n-4 बेंडिंग वाइब्रेशन 2n-4. ठीक है, और इसके लिए क्या है? 2n-5. सो आपने क्या किया? आपने 3 फॉर्मूला अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए, लीनियर नॉन लीनियर के लिए अलग और लीनियर के लिए अलग. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल 3n-6, फॉर लीनियर 3n-5. And from the total number of fundamental vibrations, stretching vibration and bending vibration, and the formula for both of the cases, linear and non-linear, we have stretching same n-1 and bending here we have 2n-4 and here we have 2n-5. Now let's calculate in any molecule, polyatomic molecule, whether linear or non-linear. Let's take both of examples of linear as well as non-linear. So let's take an example of water molecule. So we all know this water, it's a non-linear molecule. It's a non-linear molecule. How? You already know the structure of water. It's like this. This is oxygen and these are 2 hydrogen. Fine. So it's a non-linear molecule. Let's calculate total number of fundamental vibrations. So this is a non-linear molecule. So you will apply the formula for total number of fundamental vibration 3n-6. So total number of fundamental vibration 3n-6. So calculate 3
हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वाटर मॉलिक्यूल? 3 minus 6. So हो गया 9 minus 6, that's equal to 3. So there are 3 total number of fundamental vibrations, and in this fundamental vibrations some are bending and some are stretching mode of vibration. Let's calculate. We have the formula for stretching mode of vibration, so that's n minus 1. So what's n? 3 है ना. 3 minus 1 हो गया कितना? 2. तो 2 आपको यहाँ से मिल गए क्या? Stretching mode of vibration. So stretching mode of vibration, these are the fundamental mode of vibration. Stretching आपको 2 निकले तो मीन्स इसमें से जो एक है वो आपको क्या है? बेंडिंग. ठीक है ना. बट हम फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स सी क्या ये अप्लाई होता है. हम करेंगे. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द बेंडिंग वाइब्रेशन इन केस ऑफ ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल? दैट्स 2n-4. So give the value of total number of atoms. 2 into what's the total number of atoms? 3 minus 4, 6 minus 4, that's equal to what? So no, it's wrong. Okay, I'm extremely sorry. Here there is a correction. This for bending vibration it's 2n minus 5. ये थोड़ा रिवर्स हो गया था, गलत हो गया था यहाँ पर, और इसका 4 है. ठीक है. तो फिर मैं यहाँ से सोच रही थी यहाँ तो 1 निकलना चाहिए, ये क्या हो गया इधर. सो अवॉइड माई फ्लास एंड कंसंट्रेट ऑन दिस लेक्चर. दिस 2 into n क्या है? n 3 है एंड यहाँ पर 5 है. ठीक है ना. सो 6 minus 5 हो गया 1. सो आपको बेंडिंग क्या निकलना है यहाँ से? 1. फाइन. सो टोटल आपको 3 है. टोटल फंडामेंटल वाइब्रेशन में 2 क्या है? स्ट्रेचिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन, 1 बेंडिंग है. ठीक है. तो बेंडिंग आपको फॉर्मूला से भी सही हो गया. ठीक है. इसको प्लीज़ करेक्ट करना. 2n-5 हो गया फॉर बेंडिंग वाइब्रेशन. और वीडियो पूरा देख लेना. ठीक है. आपने आधा ही वीडियो देखा तो मीन्स आपका ये, इसके बाद अगर आपने नहीं देखा तो फिर सारा आपको गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी. ठीक है. तो एनीवे, सो कैन यू शो दीज टाइप ऑफ वाइब्रेशन diagrammatically? Yes, we can show. So this is oxygen over here, this is hydrogen, this is hydrogen. Fine. So this is if you take the stretching mode of vibration, हमें stretching कितने हैं? 2 है. ठीक है. 2 हमें दिखाने हैं. तो मॉलिक्यूल ऐसे स्ट्रेच करेगा. ठीक है. ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? एक्सटेंड. ठीक है ना. ये बॉन्ड ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा और ऑक्सीजन को और इसको बोलते क्या? सिमेट्रिक मोड ऑफ वाइब्रेशन. सिमेट्रिक मोड ऑफ कौन सी? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या वाइब्रेशन. ठीक है ना. सिमेट्रिक मतलब यहाँ से भी उतना ही ये वाइब्रेट करेगा, बॉन्ड उतना ही एक्सटेंड होगा जितना यहाँ से होगा. ठीक है ना. तो इसका दूसरा भी केस है, दैट इज एसिमेट्रिक मोड ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है. क्योंकि इसके 2 है, स्ट्रेचिंग के 2 है. या तो ये दोनों साइड से सेम स्ट्रेच करेगा, या एक साइड से कम, दूसरे साइड से ज़्यादा, या अपोजिट. ठीक है. दिस ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन. तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड हो जाएगा ये हो जाएगा कंप्रेस. ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस. और ये क्या हो जाएगा? एक्सटेंड. तो हो गया यहाँ से ये कंप्रेस हो रहा है, यहाँ से एक्सटेंड. ठीक है ना. या यहाँ से एक्सटेंड, यहाँ से कंप्रेस. तो मीन्स क्या है? ये एसिमेट्रिक मोड ऑफ वाइब्रेशन है. एसिमेट्रिक मोड ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या वाइब्रेशन. तो आ गए स्ट्रेचिंग के 2. बेंडिंग आपको दिखाना है. तो बेंडिंग मतलब यहाँ से आपको ये ज़्यादा है, यहाँ से कम है हाइड्रोजन. तो ये ऐसे बेंड कर रहा है. ठीक है. ये आपको कैसे बेंड कर रहे हैं? ऐसे एसिमेट्रिक सॉरी, ये आपको ऐसे, इन दोनों को ऐसे करो ऊपर. ठीक है. इन दोनों को ऐसे ऊपर करो, इस ऑक्सीजन को नीचे करो, यानी बेंड करना है. 2 हाइड्रोजन ऊपर जा रहे हैं, ऑक्सीजन नीचे आ रहे हैं, यानी बेंड. इसको बोलते हैं बेंडिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन. ये कितने हैं? ये ओबियसली एक ही है. अब आप मुझे बताओ, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या सारे वाइब्रेशंस IR एक्टिव है? इट्स माई क्वेश्चन टू यू. वीडियो पास करके इसको सोच लेना. बट अगर आप मुझसे जानना चाह रहे हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो सारे वाइब्रेशंस हैं ना पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, वो सारे IR एक्टिव नहीं हो सकते हैं. ठीक है. तो उनमें वही एक्टिव होगा जिसमें डायपोल मोमेंट चेंज होगा. किस में डायपोल मोमेंट चेंज होगा? अच्छा पहले बताओ किस में नहीं होता डायपोल मोमेंट चेंज? मुझे लगता है ये वाला IR इनएक्टिव है. IR इनएक्टिव. क्यों?
क्योंकि इसमें सेम चेंज होता है, जितना यहाँ पर चेंज होता है उतना यहाँ पर भी चेंज तो होता है, बट सेम चेंज तो वो कैंसिल होता है। सो इसका जो म्यू है वो किसके बराबर, 0 के बराबर निकलता है, यानी म्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, रादर इट्स डी म्यू बाई डी आर, वो क्या है, वो 0 के बराबर निकलता है। तो ये वाला आई आर इनएक्टिव है। तो आप इन दो केस में देखो, इसमें भी चेंज होता है, इसमें भी चेंज होता है, बट एसिमेट्रिकली, ठीक है ना। तो इसका डायपोल मोमेंट चेंज होता है विद डिस्टेंस, इसका भी होता है, तो दोनों क्या है, आई आर एक्टिव है, आई आर एक्टिव। आपको क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इज आई आर एक्टिव मोड या आई आर एक्टिव वाइब्रेशन। तो आपको नीचे ऑप्शन होगा एसिमेट्रिक मोड ऑफ वाइब्रेशन, सिमेट्रिक मोड ऑफ वाइब्रेशन, बेंडिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऑल ऑफ द अबव, नन। आप किसको करेक्ट करेंगे, आप दोनों को करेक्ट करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। होप आप ये खुद कर सकते हो आप इसके बाद, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको होमवर्क, ठीक है, जो आपको खुद करना होगा। सो मैं आपको देती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो मैं आपको बता दूँ, इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल। ये क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल, जो आपको पता है इस लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड ओ, ये लीनियर है। तो आपको पता है जो लीनियर है उनका, इसका तो डायपोल मोमेंट नहीं होता है चेंज, ठीक है। ये तो आई आर इनएक्टिव मॉलिक्यूल होना चाहिए, लेकिन हम इसकी वाइब्रेशन कर रहे हैं। वाइब्रेशन के बाद हमें देखना है इसमें कोई ना कोई वाइब्रेशन ऐसी है जो क्या है, आई आर एक्टिव वाइब्रेशन। तो वो आप देख लेना, इसके सारे एसिमेट्रिक, बेंडिंग और टोटल नंबर आप निकालना, उनमें से देखना जो एसिमेट्रिक मोड होगा और बेंडिंग होगा वो क्या होंगे, आई आर एक्टिव वाइब्रेशंस, और जो सिमेट्रिक होगा, जो दोनों साइड से सेम होगा और फिर कैंसिल हो जाता है उसका म्यू, तो और चेंज ही नहीं होता है, ठीक है, तो वो होगा क्या, आई आर इनएक्टिव वाइब्रेशंस, ठीक है। और भी बहुत मॉलिक्यूल्स है, वो आप देख लेना बुक पर, वो आप कर लेना, इतना काफ़ी है समझाने के लिए, फाइन।